takes place. So what happened during the process of crossing over the homologous chromosomes? They paired, and these homologous chromosomes, they exchange their parts. Okay bete, so when these chromosomes they exchange their parts, and next thing is that these chromosomes they must have to be moved apart. But as I am saying, if the age of a person is more, अगर किसी person की age ज़्यादा है, तो in that case there may be complications in the process of crossing over. Crossing over में complications देखी जाती है. The homologous chromosome they are supposed to pair with each other. ठीक है, they are also able to exchange their genetic segments, but when there is a stage that they have to get separate from each other, then it is very difficult for these chromosomes to get apart. Okay, so during this process, when the chromosome they tries to get apart from each other, okay, some segments of the chromosome they are binded with the previous part. So okay, so that is the case of non-disjunction. इसको हम non-disjunction कहते हैं. तो कई बार वो कहते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है उनकी कुछ सेगमेंट जो है वो डिलीट हो जाती है, या फिर किसी दूसरे क्रोमोसोम्स की सम ऑफ द सेगमेंट्स दे गेट अटैच्ड विद द प्रीवियस वन. ओके बेटे, और या फिर आप कह सकते हो कि बिसाइड दिस व्हाट हैपन, one chromatid of some other chromosome it get attached with the first one. So in this way we see so many disorders that are created. तो मैंने आपको बताया था कि chiefly we call these disorders as syndromes. So we are going to here study about three major type of syndromes that are generally found. ठीक है, 90% of population, ठीक है, who generally going to married at आप कह सकते हो बड़ी एज में जिनकी मैरिज होती है उनके अंदर ये सिंड्रोम्स जो है चिल्ड्रंस में नजर आते हैं. तो one among these is Down syndrome, another is the Klinefelter syndrome, and third one is the Turner's syndrome. Okay, but the two, that is Klinefelter syndrome and the Turner syndrome. ठीक है, तो one thing that you must take it in your mind, in the Klinefelter syndrome we have 47 number of chromosomes. But you know that in human being how many chromosomes are there? 46 chromosomes are there. ठीक, पर जो कहते हैं कि Klinefelter syndrome होते हैं उसमें instead of 46 chromosomes 47 chromosomes are there. ओके बेटे, तो दैट इज द केस ऑफ नॉन डिसजंक्शन. ये नॉन डिसजंक्शन का केस होता है. तो किसी भी एक सेक्स क्रोमोसोम जो है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम जो है उसकी कितनी कॉपीज होनी चाहिए थी? 2 कॉपीज होती है मोस्टली, या तो XX होता है या XY होता है. यहाँ पे जो है सेक्स क्रोमोसोम की 3 कॉपीज आपको नजर आती है. ट्राइसोमी इज देयर. ठीक बेटे, और अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो इन द टर्नर सिंड्रोम द क्रोमोसोम नंबर इट रिड्यूसेस टू 40, you can say 5. ठीक है, 45 रह जाता है 46 की जगह पे. तो आपको बताया था कि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो लॉस्ट हो जाता है, और जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें पर्सन का जो मेकअप है, ठीक है, तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो यहाँ से चला जाता है. तो इस तरह का जो पर्सन है उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज देखी जाती है. ठीक, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. और उससे पहले एक और सिंड्रोम जो हम यहाँ स्टडी करेंगे वो डाउन सिंड्रोम है. ठीक है, so scientist Langdon Down was discovered this syndrome for first time, and it is actually the syndrome that is related with the you can say trisomy of chromosome number 21, which is an autosome. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 जिसे कि हम ऑटोसोम कहते हैं, उसकी 3 कॉपीज यहाँ पर देखी जाती हैं. ट्राइसोमी उसकी प्रेजेंट होती है. तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, पर उससे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इन डिटेल विद यू the Mendelian disorders. So whenever we use the term Mendelian disorders, you always remember these are actually those disorders or diseases which are there in the body because of some, you can say, deformities, ठीक है, or you can say some kind of effects in the genes only. So these Mendelian disorders, they are characterized by mutations in a single gene. ठीक है बेटे, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है वो पॉइंट म्यूटेशन से रिलेटेड होती हैं. तो इसमें म्यूटेशन जो है वो एक सिंगल जीन के अंदर होती है. Another very important thing is their mode of inheritance follows the principle of Mendelian genetics. तो मेंडल के जो लॉज है वो इसके अंदर जो है फॉलो होती हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि मेंडल के लॉज क्या कहते हैं कि इन द F1 जनरेशन
that character appears, which is the dominant character, but in the F2 generation, both the characters they reappear, but the dominant character is 3 times more than the recessive character. तो हमेशा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है उसमें प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, एग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑल ऑफ दीज 3 लॉज आर फॉलोड. ओके बेटे, सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी due to a dominant gene or recessive gene. It may be autosome or it may be sex-linked genes. ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स तो है या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर हो सकती है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर हो सकती है, या कई बार दे आर रिलेटेड विद सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यू ऑलवेज अवेयर कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, XX इन केस ऑफ फीमेल एंड XY इन केस ऑफ मेल. ओके बेटे, एग्जांपल आप याद रखेंगे. ऑटोसोमल डोमिनेंट जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आती है. मैंने आपको बता दिया था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक सिंगल जीन जो है उसके अंदर जो है म्यूटेशन हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, स्टॉप कोडॉन का फॉर्मेशन हो जाता है. एंड यू नो दैट कि स्टॉप कोडॉन्स ऐसे कोडॉन्स होते हैं व्हिच कैन नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड. तो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो उससे बनने वाला प्रोटीन भी नहीं बनता, और अगर प्रोटीन नहीं बनता है तो फिर बॉडी में वो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस, दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय दैट प्रोटीन और एंजाइम. ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ काइंड ऑफ ए डिजीज जिसमें कि मसल्स का डीजनरेशन शुरू हो जाता है और मसल्स जो है वो डे बाय डे वीक होते जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें मस्कुलर वीकनेस जो है वो सीवियर कंडीशन पे हो जाती है एंड पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक. ठीक है, पर्सन जो है उसका चलना फिरना जो है वो भी बंद हो जाता है एंड मसल्स की वीकनेस की वजह से फाइनली पर्सन की डेथ हो जाती है. ओके बेटे, तो हमने आपको बताया भी था, वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ओके, तो उसके बाद देखो अनदर इज ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. तो ऑटोसोमल रिसेसिव मींस कि यहाँ पे ऑटोसोम से रिलेटेड ये डिजीज है पर कैसा करेक्टर है, रिसेसिव करेक्टर है. तो दैट इज सिकल सेल एनीमिया. ठीक बेटे, तो इसमें अगर हम मेल एंड फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल जो है, ठीक है, उसके अंदर जो है अगर मेल एंड फीमेल की आप बात करोगे तो दोनों जो है उसमें ऑटोसोम्स जो है उससे रिलेटेड ये डिजीज होगी, पर ये एक रिसेसिव करेक्टर से रिलेटेड डिजीज है, डोमिनेंट करेक्टर से रिलेटेड नहीं है. आपको ये भी बताया था कि व्हाट हैपन इन दिस डिजीज, द ह्यूमन आरबीसीज, द रेड ब्लड सेल्स, they generally have the biconcave shape, somewhat round in shape, but here what happened, these RBCs they assume sickle shape. So as a result, the quantity of the hemoglobin it actually reduces in such type of RBCs, and the hemoglobin is not able to capture much amount of oxygen. So as a result, there is a severe deficiency of oxygen if all the cells are the sickle type of cells. ओके बेटे, तो अगर 100% सेल सिकल सेल है और कंडीशन होमोजाइगस हो गई है तो उस केस में पर्सन की डेथ हो जाती है. ठीक, और अगर हाफ हाफ है, हाफ राउंड आरबीसीज एंड हाफ सिकल है, तो उस केस में जो है इस तरह का जो पर्सन है वो डिजीज का कैरियर रहता है पर उसमें पर्सन की डेथ नहीं होती है. और उसको एक एडवांटेज है कि सच टाइप ऑफ पर्सन हुज हाफ ऑफ द सेल्स आर द सिकल वन, दिस पर्सन के अंदर मलेरियल पैरासाइट से होने वाली जो डिजीज है मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो करता है वो इसमें नहीं होती है. ठीक बेटे, अनदर इज ब्लीडर्स डिजीज जिसे हम हीमोफीलिया भी कहते हैं. हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. तो फीमेल इज एक्चुअली द कैरियर ऑफ द डिजीज. आपको बताया था कि फीमेल हैज डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, एंड वेयर एज इन यू कैन से मेल वी हैव एक्स एंड वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम. तो ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज होती है because female has 2 X chromosomes, so female is actually the carrier of the disease. And if such a female who is the carrier, it gives actually that chromosome to the male child, ठीक है, जो कि डिफेक्टिव क्रोमोसोम है, तो उस केस में मेल जो है वो इस डिजीज से सफर करता है क्योंकि वाई क्रोमोसोम का हीमोफीलिया से कोई कनेक्शन नहीं है. ओके बेटे, तो 1 by 1 मैं लेने जा रही हूँ सारे डिजीजेस. तो फर्स्ट इज हीमोफीलिया. तो हीमोफीलिया के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल नाउ. तो दिस हीमोफीलिया इज एक्चुअली अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है और रिसेसिव जो है डिजीज है, रिसेसिव करेक्टर जो है उससे रिलेटेड है. तो देखो होता क्या है कि इसमें वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हु आर जनरली द कैरियर ऑफ दिस डिजीज,
ठीक है, फीमेल्स जो है वो खुद इस डिजीज की कैरियर होती हैं, बट दे आर अनअफेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। तो फीमेल कैरियर रहेंगी डिजीज की, पर उनके अंदर डिजीज अपीयर नहीं होगी बिकॉज उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक बेटे, पर वो कहते हैं कि ये फीमेल जो है वो 2 टाइप ऑफ एग्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। वन कंटेन्स द एग, ठीक है, एक एग ऐसा हो सकता है विच कंटेन्स नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम एंड अदर एग इज दैट एग विच कंटेन्स व्हाट क्रोमोसोम, ठीक है, जिसमें कि अफेक्टेड क्रोमोसोम है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो एग्स हैं, ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन जो है वो स्पर्म से होगा जब, तो उस केस में जब चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, तो अगर उसमें ऐसा क्रोमोसोम मदर में से पास होता है जो कि यहाँ पे जो है अफेक्टेड क्रोमोसोम है, तो उस केस में मेल चाइल्ड जो है उसमें ये डिजीज जो है हो सकती है। तो देखो बेटे 50-50% चांसेस है, अगर मेल में नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम गया है तो उस केस में नॉर्मल मेल रहेगा, और अगर उसके अंदर जो है जो डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम है वो चला गया है, ठीक है, तो यू नो दैट अनदर क्रोमोसोम इन मेल चाइल्ड इज द वाई क्रोमोसोम, सो इट हैज नो रिलेशन विद दिस हीमोफीलिया। तो उस केस में चाइल्ड इज मोस्टली ससेप्टेबल टू द डिजीज। अनदर चीज जो आपने इसमें याद रखनी है वो ये है कि ये डिजीज जो है इट इज अ काइंड ऑफ ए ब्लीडर डिजीज, ये एक ब्लीडर डिजीज होती है। तो वंस सच अ पर्सन और यू कैन सच अ चाइल्ड, ठीक है, ही गेट्स एन इंजरी, इस तरह के चाइल्ड को अगर कोई इंजरी हो जाती है, देन यू नो दैट इन द ब्लड ऑफ दिस चाइल्ड द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर एक्चुअली एब्सेंट। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होती हैं इसके अंदर एब्सेंट रहती हैं। आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पे we have the protein fibrinogens, ठीक है, and these fibrinogens they later activate to form fibrins. So in the blood of such a patient who is a hemophilic patient, the blood clotting factors they are absent. So once that kind of person is suffering from any kind of injury, पर्सन को किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट या इंजरी हो जाती है, तो देयर इज अ नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की बॉडी जो है इसमें से नॉन स्टॉप ब्लड फ्लो करने लग जाएगा, तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, एंड बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी, ठीक बेटे, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन। सो द इंसिडेंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ डेंटिस्ट, एक डेंटिस्ट के द्वारा ये डिजीज जो इसको डिस्कवर किया गया था। तो देयर इज वन बॉय ऑफ 14 to 15 years old and he come to that dentist for removal of his teeth. So once the dentist removes her teeth, as the boy is actually suffering from the disease hemophilia, so उसके जो teeth निकालने की वजह से उसमें bleeding जो है वो continuously start होगी and later the death of the boy takes place. तो इस तरह से हीमोफीलिया जो है उसके बारे में पता लगा कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। ओके बेटा, नाउ व्हाट इज द जेनेटिक रीजन बिहाइंड द डिजीज दैट यू मस्ट हैव टू राइट इन योर पेपर। तो सी इन योर बुक के अंदर देखिए ध्यान से, इसमें उसने बताया देयर इज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें एक सिंगल प्रोटीन जो कि क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स का पार्ट होता है वो यहाँ पर जो है वो एब्सेंट रहता है, और उसकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो है अगर उसमें एक सिंपल सा कट भी लग जाता है उसके फिंगर पे, तो उसमें भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो अनदर थिंग दैट यू मस्ट हैव टू टेक इट इन योर माइंड इज दैट द female is always having in a heterozygous condition, that is female is the carrier of the disease, ठीक है, क्योंकि उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो ही इज एबल टू सेंड दिस डिजीज टू हिज हर सन, ठीक है, वो ये डिजीज जो है वो अपने जो सन्स हैं उनके अंदर जो है ये ट्रांसफर कर सकती है। खुद वो अनअफेक्टेड रहती है, कैरियर होती है, पर अगर वो इस तरह का क्रोमोसोम अपने जो है बेटों में सन्स के अंदर सेंड करती है तो उसमें वो डिजीज के चांसेस जो है वो हो जाएंगे। ओके बेटे, अब सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या डॉटर जो है वो भी अफेक्टेड हो सकती है हीमोफीलिया से। सो द possibility of the daughter to be hemophilic is only that if the mother is the carrier of the disease and the mother is and the husband of that mother, ठीक है, उनके जो फादर हैं अगर वो भी वो कहता है कि हीमोफीलिया जो है उसके पेशेंट हैं, अगर फादर जो है वो भी हीमोफीलिक है और मदर कैरियर है, तो उस केस में जो डॉटर है उसमें
जो है ऐसे 2x क्रोमोसोम्स आ जाएंगे जो दोनों ही क्रोमोसोम्स जो है वो हीमोफीलिया से कंटामिनेटेड होंगे। तो in that situation when the daughter contains the homozygous condition, तो उसमें डॉटर जो है कैन नॉट बी सर्वाइव और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक बेटे, बाकी कंडीशंस में फीमेल्स जो है वो हेट्रोजाइगस होती हैं, तो जनरली इस तरह की फीमेल कैरियर जरूर होंगी, बट सच टाइप ऑफ फीमेल, ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज बी द केस कि ये फीमेल जो है इट इज गोइंग टू बी मैरिड टू अ पर्सन हु इज हीमोफिलिक, सो इट इज वेरी रेयर केस, so 90% फीमेल्स दे आर द कैरियर्स, बट कहते हैं कि जिनकी जो मैरिज है वो नॉर्मल पर्सन से होती है, तो इसलिए सन्स जो हैं वो अफेक्टेड रहते हैं बिकॉज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, एंड डॉटर्स की लेस चांसेस होते हैं बिकॉज डॉटर्स में 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं। ओके बेटे, तो ये था हीमोफीलिया के बारे में। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन एंड दैट इज सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया इट इज अ काइंड ऑफ ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। याद रखेंगे कि हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, whereas sickle cell anemia is a disease that is related with autosomes, ठीक है, and the disease appear in a recessive form, dominant जीन से related नहीं है, ये recessive allele से related है। तो कहते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है डिजीज का, तो आपको बताया था कि डिजीज जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो है उनके अंदर ट्रांसफर होती है व्हेन बोथ द पार्टनर्स दे आर द कैरियर फॉर द डिजीज, ठीक है, मदर जो है वो भी कैरियर है डिजीज की एंड फादर जो है वो भी कैरियर है, देन द डिजीज मे बी अपीयर इन द चिल्ड्रन और द ऑफस्प्रिंग। ओके बेटे, तो डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील, ठीक है, एक सिंगल पेयर जो है एलील का वो इस डिजीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल करते हैं इस डिजीज को। तो देखो अगर दोनों ही फादर एंड मदर जो है दे आर द कैरियर ऑफ द डिजीज, तो इसका मतलब दोनों जो है उनके अंदर जो एलील्स प्रेजेंट होंगी, पेयर ऑफ एलील्स, उनका मेकअप कैसा होगा, HBA एंड HBS, ठीक है बेटे। HBA जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, और HBS जो है वो ऐसी एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिकल सेल अनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो अगर हमने इसका पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करें तो फादर जो है उसका एलीलिक कॉम्बिनेशन जो है उसमें आप लिखोगे HBA HBS, और उसी तरह से मदर भी कैरियर है तो उसमें भी लिखोगे HBA HBS। ओके बेटे, यू नो द प्रोसीजर दैट हाउ यू कैन ड्रॉ द पुनेट स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, पुनेट स्क्वायर जो है उसके जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आपने HBA और HBS लिख देना है, ठीक है। 4 आपने जो है उसके अंदर बॉक्सेस बनाने हैं पुनेट स्क्वायर में, एंड यू हैव टू राइट HBA on the topmost position then HBS। उसी तरह से पुनेट स्क्वायर के टॉप पे भी आप HBA और HBS लिखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट को लेके हम ऊपर लिखे हुए दोनों के साथ करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में अगर मैंने HBA लिखा है तो उसको मैं HBA और HB ऊपर वाले HBA के साथ करूंगी तो मेरे पास फर्स्ट बॉक्स में HBA HBA आ जाएगा। ओके बेटे, सेकंड अगर HBA को HBS के साथ करूंगी तो ऊपर वाले सेकंड बॉक्स में मेरे पास HBA HBS आ जाएगा। अब नीचे मैंने क्या लिखा था, HBS लिखा है, तो HBS को अगर मैं HBA के साथ करूंगी तो मेरे पास HBS HBA आ जाएगा, और उसके बाद जो है मेरे पास एक कंडीशन आ जाएगी जिसमें HBS और HBS आ जाएगा। ठीक बेटे, तो एक चीज याद रखेंगे कि चारों जो हमारे पास गैमेटिक कॉम्बिनेशंस आई है ना, उसमें से HBA वाला पर्सन जो है वो नॉर्मल होगा क्योंकि उसके अंदर दोनों ही एलील्स नॉर्मल है। और अगर मेरे पास जो है दो मेरे पास ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे जिसमें HBA और HBS होगा तो ये डिजीज के कैरियर होंगे। ओके, और एक कंडीशन मेरे पास आ सकती है HBS HBS वाली लास्ट वाली, तो वो वाली जो है वो डिजीज कंडीशन है। इस तरह का पर्सन जो है उसके ऑल द सेल्स आर द सिकल सेल्स, ठीक है, ऑल द आरबीसीज दे आर द सिकल शेप्ड आरबीसीज। So this person is not able to survive because this person is going to be suffer from severe anemia, and because of severe deficiency of oxygen the person is not able to survive। तो homozygous condition में अगर HBS HBS एलील आ जाती है तो person की डेथ हो जाती है उस केस में। ठीक बेटे, अब वो कहते हैं कि व्हाट इज द जेनेटिक रीजन बिहाइंड द डिजीज, ठीक है, इस डिजीज के पीछे मेन रीजन क्या है, तो उसमें आपको ये बताया हुआ है कि सिकल सेल अनीमिया जो है उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि द डिफेक्ट इज कॉज्ड एक्चुअली बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए अमाइनो एसिड, एंड दैट अमाइनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड जो है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है यहाँ पर एक दूसरे अमाइनो एसिड से
and the name of that amino acid is valine. तो आई एम ऑन पेज नंबर 89 जहाँ पे सिकल सेल अनीमिया की आरबीसीज आपको दिखाई है, उससे एग्जैक्टली नीचे देखें आप। ओके बेटे, तो उसमें उसने आपको बताया हुआ है कि हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर हमारे पास 2 चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा चेन्स। तो इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इस डिजीज के अंदर ग्लूटामिक एसिड जो है इसका सब्स्टिट्यूशन कर लेती है कौन सी अमीनो एसिड, वेलाइन अमीनो एसिड। और ये डिजीज जो है वो हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबुलिन चेन से रिलेटेड है। ठीक है, you have also heard learn the structure of hemoglobin in class 11 chapter biomolecules। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन में अल्फा एंड बीटा 2 टाइप ऑफ चेन्स होती हैं, प्रोटीनेशियस चेन्स होती हैं। तो इसमें बीटा ग्लोबुलिन चेन जो है हीमोग्लोबिन की, उसके 6th पोजीशन पर, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड थी। उस ग्लूटामिक एसिड को हटाकर वहां पे कौन सी अमीनो एसिड आ जाती है, वेलाइन अमीनो एसिड आ जाती है। तो ऐसा कैसे होता है, तो उसका उसने कारण बताया हुआ है, बिकॉज यू नो दैट एवरी अमीनो एसिड इज एक्चुअली कोडेड बाय व्हाट, अ कोडॉन। हर एक अमीनो एसिड को एक कोडॉन कोड करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास कोडॉन है GAG। ठीक बेटे, फिर से सुनेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोडॉन है GAG, जिसने कौन सी अमीनो एसिड के लिए कोड करना था, ग्लूटामिक एसिड के लिए। पर वो कहते हैं कि ये जो GAG कोडॉन है उसमें सेंटर वाले जो A नाइट्रोजनियस बेस है उसकी जगह पे U आ जाता है, और ये कोडॉन जो है वो मॉडिफाई होकर GUG बन जाता है। ठीक है, तो GAG तो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता था, बट इस GUG एक्चुअली कोड फॉर वेलाइन। तो फिर ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन होके हियर वेलाइन कम्स। ठीक, and this substitution actually takes place at the 6th position of the beta globulin chain of the hemoglobin. So as a result, what happened, the person is suffering from the disease here, this sickle cell anemia, and all the RBCs they now become the sickle shape. If the condition appear in homozygous condition, this means that patient has all the RBCs that are of sickle shape, and उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, and the hemoglobin जो है it is very less in amount and is not able to capture more amount of oxygen. So as a result there is a severe deficiency of oxygen, the person is not able to do the metabolic activities, and in lack of oxygen the death of the person takes place. Okay students, तो जब भी हमें डिजीज एक्सप्लेन करने के लिए आती है हमने उसके जेनेटिक रीजन जरूर लिखने हैं। जैसे मैंने आपको हीमोफीलिया में बताया है कि जेनेटिक रीजन जो है उसके अंदर आप बताओगे कि देयर इज अ सिंगल प्रोटीन व्हिच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन, इट गेट्स अफेक्टेड, and because of that the clotting factors they are not produced in the blood, and as a result the person later death of the person takes place. और अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो आपने ये जरूर लिखना है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है एट इट्स 6th पोजीशन, ठीक है, there should be an amino acid that has to be formed, and that is glutamic acid, and it is actually coded by the codon, and the name of the codon is GAG, who is supposed to form glutamic acid. But this codon it gets mutated, and the central base, that is adenine, it is substituted here by uracil. So now the base becomes GUG, and GUG is not going to code for glutamic acid, it produces a new amino acid, and that is valine. So substitution of glutamic acid by valine it takes place at 6th position. So as a result all the cells of RBCs they become sickle shape, and the person is not able to survive in this disease which is sickle cell anemia. One very interesting thing that I have described so many times is that if a person who is a carrier of this disease sickle cell anemia, then this means in the blood of that person 50% these RBC cells they are of the normal shape, that is round biconcave shape, but whereas the other half of the RBCs, 50% of RBCs they are of sickle shape. So such a person have an advantage that if a person is living in such type of area where the malaria disease is very much dominant, so as the malarial parasite Plasmodium is not able to survive in a lesser amount of oxygen, so if half of the cells they are the sickle shape and the malarial parasite Plasmodium enters into the bloodstream, so the Plasmodium is not able to survive. So this is an advantage to that person that उसके अंदर मलेरिया होता ही नहीं है। ठीक बेटे, तो ये हमारी हो गई है सिकल सेल एनीमिया। अब मैं नेक्स्ट पेज पर हूँ, एंड देयर इज अ स्मॉल डिजीज एंड दैट इज फिनाइलकेटोनुरिया।
हमेशा याद रखेंगे कि फिनाइलकेटोनुरिया एंड ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जबकि अभी आपको जो मैंने हीमोफीलिया बताई है वो सेक्स लिंक्ड डिजीज है। और एक इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद हीमोफीलिया इज कि हीमोफीलिया इट इज अ ब्लीडर डिजीज, ठीक है बेटे। और ये ब्लीडर डिजीज जो है ना वो ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर ये डिजीज जो है वो उसके प्रेडिसेसर्स जो है वो मौजूद हैं। तो उसकी जो क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया जो है वो इसकी विक्टिम है ये डिजीज की। और उनमें जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनके अंदर ये डिजीज जो है प्रेजेंट है, बिकॉज दे बिलोंग टू रिच फैमिलीज, तो दे जनरली टेक प्रिकॉशंस, ठीक है। तो उनके अंदर जो है ये डिजीज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चली आ रही है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पेडिग्री एनालिसिस। मैंने आपको कहा था किसी भी जेनेटिक ट्रेट को स्टडी करने के लिए वी कैन गो थ्रू द पेडिग्री एनालिसिस that from which generation this disease actually started by mutation of which gene and कितनी generations तक मूव कर चुकी है, ठीक है बेटे। तो याद रखेंगे कि क्वीन विक्टोरिया जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हैं वो इसकी कैरियर रही हैं और उन्होंने आगे जितने भी उनके मेल मेंबर्स हैं उसमें ये डिजीज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। Okay, student, next is phenylketonuria. So phenylketonuria is again the autosomal recessive disease. So what is the special thing of this disease is कि the affected individual lacks an enzyme that converts amino acid phenylalanine into tyrosine, ठीक है। तो इसके अंदर जो पर्सन अफेक्टेड होता है वो पर्सन जो है उसके अंदर एक अमाइनो एसिड जिसको कि हम फिनाइल एलालीन कहते हैं, इस अमाइनो एसिड को टायरोसिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना था। तो आपको मैंने एंजाइम का नेम भी बताया था, द नेम ऑफ द एंजाइम इज फिनाइल एलालीन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। सो दिस एंजाइम इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस अमाइनो एसिड दैट इज फिनाइल एलालीन इनटू टायरोसिन, but what happened, there is a mutation in that particular gene who is going to produce this enzyme phenylalanine hydroxylase, and because of the inefficiency, देखो एक तो एंजाइम बनेगा ही नहीं, और अगर एंजाइम गलती से थोड़ा बहुत बन भी जाता है तो वो इनएफिशिएंट रहेगा और वो आगे जाकर जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, ठीक बेटे। तो एंजाइम जो है इसकी एब्सेंस में फिनाइल एलालीन अमाइनो एसिड जो है वो टायरोसिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाती और वो उसकी जगह पे अपने डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाती है, पार्शियल उसका डिकम्पोजिशन होता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। तो ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड और जो दूसरे डेरिवेटिव्स हैं दे गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठा होने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पर्सन जो है इसकी मेमोरी रेट पर इसका असर पड़ता है। देयर इज अ इफेक्ट इन द मेमोरी और द कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन, so the rate of mental retardation it increases in that person, the person is not able to memorize the things for a longer time, ठीक है। mentally retarded होता जाता है person। और कहते हैं कि in a severe case what happen, as you know that due to accumulation of this phenylalanine, ठीक है, तो फिनाइल एलालीन की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से as ketone bodies are present in this phenyl alanine, so what happen, your kidneys which are involved actually in the process of formation of urine, so you have also studied the excretory system of human excretory system in class 11, and where you studied that the renal tubules you are actually involved in 90% reabsorption of important essential nutrients of your body. But what is the special thing that is associated with this phenylketonuria disease, कि यहाँ पे जो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती है ना बेटे, डीकम्पोजिशन जब होता है इसका फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर या उसके डेरिवेटिव्स में, तो उस दौरान जो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उसको आपकी जो किडनी है जब वो यूरिन बनाती है तो वो बाकी सारी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है, पर वो कीटोन बॉडीज को रीएब्जॉर्ब नहीं करती है। तो इसलिए यहाँ पर यूरिन जो है उसमें से एक्सक्रीट आउट होती हैं कीटोन बॉडीज, ठीक बेटे, क्योंकि आपकी किडनी कीटोन बॉडीज को रीएब्जॉर्ब नहीं करती। तो इस कंडीशन को हम सीवियर कंडीशन कंसीडर कर सकते हैं फिनाइलकेटोनुरिया की, ठीक बेटे। तो इस तरह का पर्सन जो है उसकी आप पहचान कैसे करोगे, अगर आप उसका यूरिन टेस्ट करते हो तो उसमें कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको नजर आएंगी, because the renal tubules of the kidney is not able to do the reabsorption of these ketone bodies. So this is all about phenylketonuria. ओके बेटे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि देखो दो चीजें और उसने ऐड की हुई हैं, दो डिजीजेस
So in the old book the name of these diseases are mentioned, but in the new book the entire account is there. तो उसमें एक हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक बेटे, एक कलर ब्लाइंडनेस है आपके पास, और एक अपने पास जो है वो थैलेसीमिया की डिजीज. तो कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमिया इज देयर, तो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद यू. ठीक, तो देखो कलर ब्लाइंडनेस नेम से ही पता लग रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस डिजीज जो है, द विक्टिम्स ऑफ दिस डिजीज दे आर एक्चुअली एबल, दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कलर्स. ठीक है, जो भी इस डिजीज के विक्टिम्स होते हैं ना, वो दो कलर्स की पहचान नहीं कर पाते. ठीक बेटे, कौन से वो टू कलर्स हैं? वो टू कलर्स हैं प्राइमरी कलर्स, वन इज रेड एंड अनदर इज ग्रीन. तो दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश दीज टू कलर्स. उनकी जो आईज हैं वो इन दोनों कलर्स की पहचान नहीं कर पाती हैं, रेड एंड ग्रीन कलर्स की. तो आपको पता है कि अवर आईज हैज टू टाइप ऑफ सेल्स बाय व्हिच वी आर एबल टू सी द डे लाइट विजन एंड द नाइट विजन. ठीक है, कौन से वो दो सेल हैं वो भी आपको पता है. द डे लाइट विजन के लिए हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनको कोन सेल्स कहती हैं, एंड फॉर नाइट विजन वी हैव रॉड सेल्स. ठीक है, जिसमें प्रोटीन रोडोप्सिन होता है. तो बेटे हियर you have to remember in your mind that the person who is the victim of this color blindness is not able to discriminate between red and green color, and the defect is due to mutation in the gene, a single gene. ठीक है, इसमें म्यूटेशन हो जाती है एक सिंगल जीन में जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है. तो इसीलिए वो कहते हैं कि इसमें भी हीमोफीलिया की तरह ही जो फीमेल होती है, शी इज द कैरियर ऑफ द डिजीज. वो डिजीज के कैरियर रहती है बिकॉज द फीमेल हैज टू क्रोमोसोम्स और जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं. पर जो मेल है वो इस केस में जो है, अगर डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम रिसीव करता है कैरियर फीमेल में से, तो उसके अंदर ये डिजीज अपीयर हो जाती है. तो फीमेल जो है वो मोस्टली जो है उसके अंदर जो है ये डिजीज की कैरियर रहेगी, और मेल पार्टनर्स जो हैं या मेल चिल्ड्रंस जो हैं उनके अंदर डिजीज अपीयर हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिंगल